Today, still the country fights a crime and violence which have a different design than that of earlier times. Prior to independence, the crime and violence had the name of British. Now, the crime and violence have the name of terrorism, burglary, riots, strikes, and taking of lives of valued citizens. Even after becoming republic, we are not free of terrorism, which is pulling our country from the mainstream of lives. Poverty, illiteracy, and unemployment are the three major factors which are pulling us back and making people to resort to the bad ways of living life. Still, with all these problems, unity in diversity has been the biggest symbol of our country. I feel that we should make our progress in good directions in the coming days, and feeling of oneness remains in progressive days of tomorrow. Dear friends, let us all strive towards development and progress. The process of development is not meaningful without the active involvement of people in a democracy. Modern democracy aims at protecting rights of individual, subgroups, and as well as ensuring loyalty to the nation. Democracy is undeniably and irrevocably connected to nationalism. Nationalism cannot be defined as loyalty to an ethnic group, race, or religion. We should forget parochial and regional differences and concern ourselves with eradicating poverty, illiteracy, unemployment, and other maladies. So, let's take a solemn pledge to work sincerely, selflessly, and with dedication for good of our nation on this auspicious occasion. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Better than the entire world is our Hindustan. Better than the entire world is our Hindustan. We are its nightingales of mud, and it is our garden abode. Though in foreign lands, we may reside, with our homeland our hearts abide. Regard us also to be there, where exist our hearts, Thank you. Now I would like to call Shraddheya Acharya Shri to speak few lines and bless Acharya Kulam family. आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही गर्व और स्वाभिमान का दिन है। 67वें इस गणतंत्र दिवस पर मैं आप सबको और पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यह पतंजलि योगपीठ परिवार, यह आचार्य कुलम परिवार, हम सब मिलकर के माँ भारती के यश को बढ़ाने के लिए, जिन वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने जिन भावनाओं को लेकर के, जिन स्वप्नों को लेकर के अपना बलिदान दिया, शहादत दी, उसको पूर्ण करने के लिए हम लगे हुए हैं। और सच्ची उनके प्रति हमारी स्मृति, श्रद्धांजलि, या मैं यूँ कहूँ कि गणतंत्र दिवस की सार्थकता तब होगी हम जब उस गणतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। तो हम योगदान इस तरह से दे सकते हैं, जो जहाँ पर भी है, जिसकी जो जिम्मेदारी है, जिसकी जो ड्यूटी है। जैसे अभी आप बच्चे हैं तो आपकी ड्यूटी है कि आप बहुत अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करें, अपने माता पिता और गुरुजनों का आदेश आज्ञा का पालन करें। और वरिष्ठ हैं तो जिन जिन सेवा कार्यों में सब लगे हुए हैं उसको हम पूरी तरह से क्रियान्वयन करें, तो उससे देश निश्चित रूप से मजबूत होगा। जब व्यक्ति कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होता है तो उसकी अनुकूल जो ऊर्जा है वह देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कुछ वर्ष पूर्व श्रद्धेय स्वामी जी ने जो अभियान छेड़ा, उस अभियान का जो परिणाम है वो हम सबके सामने है, देश के सामने है। देश में अब नई आशा की किरणें और लोगों के अंदर उत्सुकता और उमंग भरा हुआ है। तो हम आशा ही नहीं, विश्वास करते हैं कि आने वाला दिन, आने वाला समय भारत का होगा। भारत विश्व का सिरमौर बनेगा, विश्व का गुरु बनेगा, विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। उस कार्य को मूर्त रूप देने में पूरे देशवासियों की भूमिका तो होगी ही। उसमें पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े हुए, भारत स्वाभिमान से जुड़े हुए हमारे लाखों लाखों भाई बहन और इस आचार्य कुलम के हमारे प्यारे प्यारे बेटे और बेटियों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। जिस तरह से अभी आपने सुंदर प्रस्तुतियां दी, इससे आपके मन में राष्ट्रवाद की भावना, संस्कृति और आध्यात्म की भावना यह और बढ़े और वो बहुत आगे पहुँचे। इसी शुभकामना के साथ में आप सबको मेरी शुभकामनाएं
और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। ओम। Thank you, Acharya Shri, for your speech. Your speech was very courageous and inspirational. It has opened up a new horizon of self-introspection and vision. Thank you. देश के प्रतिष्ठित अभिनेता व प्रसिद्ध कलाकार श्री राजपाल यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। पहले तो अपने परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में माथा रखते हुए, आचार्य जी के चरणों में माथा रखते हुए, यहाँ पे जो हमसे उम्र में बड़े हैं सबको मैं बड़े भाव के साथ में चरण स्पर्श करता हूँ, और जो हमसे उम्र में बराबर है मैं उनसे दोस्ती का हाथ मिलाता हूँ, और जो उम्र में छोटे हैं लेकिन हाइट में बड़े हैं उनके लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दें। मेरे छोटे भाई बहनों, हमने हमेशा बड़ों से सीखा है और बड़ी अद्भुत जर्नी रही जीवन की, जिसमें एक गांव की नाली से लेके और ये 7 समंदर, माँ बाप बोलते थे 7 समंदर 7 समंदर, 7 समंदरों को कई 7 बार जो है आप सबके आशीर्वाद से घूमने का मौका मिला। लेकिन हृदय से बोलना चाहता हूं कि कोई आदमी कहीं जाता नहीं है, कोई आदमी कहीं आता नहीं है, उसको आने के लिए और बुलाने के लिए कोई ऊर्जा चाहिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज एक रात हमें पतंजलि के निवास में बिताने का जो मौका मिला है, तो रात में मैं यही सोच रहा था कि दधीचि जी से लेके जितने भी हम लोग पढ़ते थे कि पहले हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे जितने भी उसमें जंगल में रह के गुरुकुल विद्या और जिस तरीके का, और फिर एक मुहावरा सुनते थे कि जंगल में मंगल होता है। आई थिंक हमारे सारे उपनिषद, सारे ग्रंथ जितने भी हैं सबको प्रमाणित करता है तो पतंजलि प्रमाणित करता है। बड़ी मुश्किल से, बड़े सौभाग्य से हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जब बोलते हैं कि हमारे देश में कोई रत्न पैदा हुए जो देश को दिशा देके चले जाएं। कोई भी कहानी जब बनती है आसानी से मिल जाती है तो उसको कहानी हम नहीं समझते, उस पर क्वेश्चन हम रखना शुरू कर देते हैं और क्वेश्चन से कहानी को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम अब इस अपार श्रद्धा, इस अपार कल्पनाशीलता, क्योंकि हम अभिनेता हैं, हम जानते हैं, हम कोई भी कल्पना करते हैं किसी चरित्र की मानसिकता को जीने के लिए, तो उसकी मानसिकता को हम अपने हाव भाव से, अपने शरीर से उसको एक मूर्त रूप प्रदान देने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, और एक ऐसी कल्पनाशीलता जो देश में सिर्फ पुराणों में पढ़ी जाए या सिर्फ उसका हम इतिहास या उसकी पौराणिकता को समझें, लेकिन 2015 में जिस तरीके से पूरा देश, पूरी दुनिया जिसकी प्रामाणिकता को समझे और उसको उस कल्पनाशीलता को अपनी आंखों के द्वारा अगर देख ले, तो हमें नहीं लगता है कि उससे अच्छा कोई सौभाग्य दिन हो सकता है। मैं जितनी भी प्रशंसा करूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि ऐसी उम्र में जहां पे कुछ महापुरुष पैदा होते हैं जो एक कल्पनाशीलता को मूर्त रूप प्रदान करते हैं, और उसके पीछे की कर्मठता, उसके पीछे का फुल ऑफ हार्ड वर्क, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विद फुल ऑफ लव, तो आई थिंक ऐसे महापुरुष होते हैं। आज कितनी बड़ी बात है कि जब हम लोग अमेरिका या कहीं जाते थे तो 3 सपने देखते थे कि भगवान हमारे यहां भी ऐसे एयरपोर्ट हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ एयरपोर्ट की जिस तरीके की हालत थी 10 साल 15 साल पहले, उसी तरीके से हमारे यहाँ की ऐसी संस्कृति कि हम क्यों नहीं मॉडर्न हो सकते, हम क्यों नहीं आधुनिक हो सकते। आज बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर, बच्चों का आत्मविश्वास देखकर, बच्चों की ऊर्जा देखकर ऐसा लगता है कि अगर मॉडर्निज्म है तो यहाँ पर है, आधुनिकता है तो यहाँ पर है, और संस्कृति है तो यहाँ पर है। जब हम अपनी संस्कृति को अपने माथे का तिलक बनाते हैं
तो जो भी हम प्रेजेंट करते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो पूरी दुनिया में नाम के सिवाय कुछ नहीं होता है, और उसमें अपने अपने बड़ों का आशीर्वाद होता है। आई थिंक हमारी संस्कृति, अगर हमारा देश, हम शरीर है, हमारे अलग अलग अंग हैं, अलग अलग कोशिकाएं हैं, पंच तत्व हैं, तो संस्कृति हमारी माथे की तिलक है। और जब तक हम इस माथे के तिलक को इसी तरीके से शोभायमान करते रहेंगे, हमें लगता है कि हम इतने ऊपर चले जाएंगे जहां पे पूरी दुनिया परिकल्पना भी नहीं कर सकती है, उतने ऊपर जा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आज 26 जनवरी, आज हमारे जीवन का सबसे विशेष दिन है कि स्वामी जी के चरणों में हमें आप सबके साथ गणतंत्र दिवस मनाने का मौका मिला, आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। और हम अंदर से, हृदय से सिर्फ एक ही बात करना चाहते हैं बच्चों, मुझे ऐसा सच में एक ही चीज फील हुई कि अगर हमें दोबारा फिर बच्चा कर दिया जाए तो मैं पतंजलि में एडमिशन लेके इस तरीके की योगा कर सकूं। बहुत सारे स्वामी जी के शिष्य हैं, बहुत सारे लोग, कोई आमने सामने शारीरिक रूप से एक दूसरे का लाभ उठाते हैं, और कुछ जो बेचारे थोड़े से ऐसे हमारे जैसे होते हैं तो पर्दे से देख के या टीवी से देख के, आप विश्वास करिए आज पिछले 10 साल से हमने कभी भी लोहा नहीं किया है। ये शायद आपको सरप्राइज होगा, इन हाथों में कभी भी, पूरा परिवार जानता है, सब वर्जिश करने में डटे रहते हैं। और हमने अगर सीखी है तो कबड्डी सीखी है, हमने सीखी है तो कुश्ती सीखी है, और उसके साथ में अगर कुछ सीखा है तो प्राणायाम सीखा है। आज हम सबसे कहते रहते हैं कि 77 साल का भी हो जाऊंगा तो 27 साल से ऊपर नहीं दिखूंगा, तो उसका मीनिंग सिर्फ योगा और प्राणायाम है। और मैं अपने घर में साइलेंटली रोज सुबह उठ के पहले टीवी लगा लेता था, स्वामी जी के जितने भी उसके बारे में, जितने अनुलोम विलोम, कपालभाति, सब आज कहीं भी, अभी पाकिस्तान के बॉर्डर पे शूटिंग कर रहा था तो सारे लोग सुबह सुबह अपना इधर, कोई इधर सुनकर, हम बैठे रेता में बैठ के अपना प्राणायाम कर लेते थे। आज आप सबके आशीर्वाद से आज हॉलीवुड, बॉलीवुड, नुक्कड़ से शुरुआत हुई थी, नुक्कड़ नाटकों से स्वामी जी ने अच्छा आदेश दिया, और पिछले 10 साल से इस तरीके के आदेश बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन एक परम पूजनीय स्वामी जी के चरणों में मत्था रखकर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अभिनय एक ऐसी पूजा, ऐसी श्रद्धा होती है जिसको बोलते हैं कि सरस्वती जब आपके पांगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्वांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नमः सात्विकम शिवम, तम नमः सात्विकम शिवम। हमने जीवन में बहुत अभिनय किया, लेकिन जीवन से अभिनय करने की कभी कोशिश नहीं की। हमसे हमेशा जिस गली को नुक्कड़ में जाते हैं सब लोग चिल्लाते हैं अपने डायलॉग सुनाओ। मैं लोगों से प्रार्थना करता हूं कि 150 फिल्में कर चुका हूं, 90% फिल्मों के डायलॉग लगभग आप लोगों को खूब आशीर्वाद मिला है। डायलॉग आप याद रखो ताकि हम आगे के डायलॉग याद कर पाए। एक बार डायलॉग बोल दिया, उसके बाद में उसमें जोक भी, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट जो है वो आत्मा से जुड़ा हुआ है और आपके ब्लड से, हमारे ब्लड से जुड़ा हुआ है। हम यही कोशिश करते रहेंगे कि हमारी जबान से, हमारी भाषा से, हमारे हाव भाव से जितना भी हो आपका ब्लड अच्छा हो और आप ऊपर बढ़ें। हम आपसे सीखें, आप हमसे सीखें। तो आज स्वामी जी का आदेश हुआ है तो जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि हमने जीवन में 10 साल से परफॉर्म नहीं किया। हमने परफॉर्म किया तो हमेशा सिनेमा में या स्टेज पे किया। आज स्वामी जी के आदेश पर एक कक्षा 6 में जब पढ़ता था और एक जीवन का पहला चुटकुला सुनाया था। हाइट में बहुत छोटे थे और तो बोले कि एक आदमी घर में बैठा रो रहा था, तो गांव की सब माताएं बहनें आई। बोले क्यों रो रहे हो भैया? बोले सुबह सुबह जो है माता जी चली गई। अरे 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 अरे, तू इतना क्यों रो रहे हो, इतना क्यों रो रहे हो? हम सब तुम्हारी माता के समान ही तो हैं, क्यों रो रहे हो? आदमी बड़ा खुश हुआ कि चलो सब माताओं ने हमें संभाल लिया, जिंदगी दे दी। दूसरी बार उनके चाचा जी खत्म हो गए, बहुत रोया। फिर गांव के लोग आए, बोले भाई क्यों रो रहे हो? बोले चाचा जी नहीं रहे। तो बोले चिंता क्यों करते हो, थोड़े दिन की जिंदगी है, इतना क्या, हम सब चाचा ही तो है।
चाची खत्म हो गई, सबने कह दिया हम चाची ही तो है। एक दिन आदमी सुबह सुबह छाती पीट पीट कर पूरे उसमें रास्ते पे चिल्ला रहा, दहाड़े मार मार के रो रहा था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, जब देखो तब रोता रहता है। इतना तेज ऐसा क्या घट गया कि मतलब ऐसा कौन जो आप इतने रो रहे हो? बोले पहले माता जी मरी। पूरे गांव ने कहा हम तुम्हारी माता है। भाई वो चाचा जी मरे, सबने कहा हम तुम्हारे चाचा। चाची मरी तो सबने कहा चाची। आज पत्नी मरी तो कोई नहीं कह रहा हम तुम्हारी पत्नी है। ये कक्षा 6 में ये जब 7-8 साल का था तो सुनाया था, बड़ा आशीर्वाद मिला था। आज एक जर्नी के बाद में अपने गुरुओं के सामने इस तरीके से सुनाने का मौका मिला है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा। कोशिश करूंगा कि पतंजलि की जमीन सरजमीन पर माथा टेकने का मौका हमेशा मिलता रहे और यहाँ आके आप सबका आशीर्वाद लेता रहूं। जय हिंद, जय भारत। वयमपि सौभाग्यशालिनः स्मः यतोहि मम बहूनि मित्राणि एवं सन्ति ये अभिनेता भवितुम् इच्छन्ति। अधुना परमपूज्यः स्वामिवर्याः मया सादरं निवेदयन्ते यत् अस्मिन् पावन पर्वणि अस्मान् आशीर्वचांसि प्रदाय अनुगृह्णन्तु इति। परमपूज्यः स्वामिवर्यः। भाई राजपाल यादव जी बोल रहे थे जब मैं छठी में था तब छोटा था, मैंने कहा अभी कौन सा बड़ा हो गया। एक दिन अचानक फोन आया कि वो राजपाल यादव जो है वो आपसे बात करना चाहता है। मैंने कहा भाई ये कौन सी आफत आ गई। बोले स्वामी जी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आचार्य श्री के प्रति भी उनकी अनन्य श्रद्धा है। और यहाँ मैं देख रहा था तब जब बेटियां परफॉर्म कर रही थी तब नीचे आशीर्वाद लेने गई तो इसमें इतनी श्रद्धा है कि उस कन्या के चरण छू के राजपाल ने खुद आशीर्वाद लिया। इतने संस्कार। अभिनय, हास्य, विनोद, उसमें सात्विकता हो। और कई बार अभिनय हंसाने के लिए किए जाते हैं। जैसा अभिनय किया जा रहा है वैसा यदि जीने लगे तो फिर मामला खतरे में आ जाता है। इसलिए अभिनय की दुनिया जिसमें एक दिव्यता है, सात्विकता है जिनमें, उनका भी अभिनंदन। भाई राजपाल यादव जी पहली बार पतंजलि योगपीठ और आचार्य कुलम आए, उनको एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 66वां गणतंत्र देश मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ और तब से हम राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए संविधान को ही देश की व्यवस्था का प्राण मान करके उस पर हम भरोसा करते हैं। जैसे भगवान का संविधान वेद है। भगवान का संविधान क्या है? जैसे भगवान का संविधान वेद का विधान है, ऐसे ही राष्ट्र का संविधान राष्ट्र का प्राण होता है। और यद्यपि इसमें बहुत से संशोधन हुए हैं, लेकिन आज राष्ट्र में एकता, अखंडता, संप्रभुता है। राष्ट्र में एक दूसरे के प्रति सद्भावना है। और 565 रियासतें थी जब अंग्रेजों की गुलामी से, उनकी पराधीनता से, परतंत्रता की बेड़ियों से 7 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं ने अपने शहादत, बलिदान, कुर्बानी देकर के देश को आजाद कराया। और हम उस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने 565 रियासतों को मिलाकर के एक अखंड भारत बनाया। नहीं तो हर एक राजा अपने राज्य को एक राष्ट्र के रूप में मानता था और कई सदियों से, साल 6 महीना हुआ और कोई भी समर्थ हुआ राजा और दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया। यही लड़ाइयां चलती रहती थी। बहुत कुछ
जब से इस राष्ट्र का जन्म हुआ 1,96,8,13,115 वर्ष पुराने अपने सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं। करीब 200 करोड़ वर्ष पुराना यह स्वाभाविक राष्ट्र भारत, क्योंकि 500 वर्ष से पहले का अमेरिका का इतिहास नहीं पता है, अमेरिकन को भी नहीं पता। 500 वर्ष पुराना राष्ट्र है अमेरिका, जो आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक और आर्थिक महाशक्ति कहलाता है। 2000 वर्ष में सिमट जाता है पूरा यूरोप का इतिहास, जिन्होंने 70 से ज्यादा देशों के ऊपर अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम किया था। आज जब से मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरबिया में, इराक, ईरान और इन तमाम जो रेतीले देश हैं इनमें तेल पैदा हुआ, तब से वहां पर भी एक समृद्धि का बहुत बड़ा दौर शुरू हुआ। और एक पिछले भी कालखंड था जहां पर इस्लाम ने अपने पैर पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास किया। उस इस्लाम का इतिहास भी 1400 साल पुराना है। 1400 साल पुराना इस्लाम, 500 साल पुराना अमेरिका, 2000 साल पुराना यूरोप का इतिहास। हम भारतीयों को गर्व है। आचार्य कुलम, अपना पतंजलि विश्वविद्यालय, इसका हमने स्लोगन ये रखा है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। हमें गर्व है कि विश्व की प्रथम संस्कृति के उद्घोषक हम भारतीय हैं। और ये 500, 1400, 2000 साल पुरानी नहीं, अपनी 200 करोड़ वर्ष पुरानी संस्कृति है। और अपने उस सनातन संस्कृति के गौरव को आधार बना करके अपने हाथों से हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जो फिर से पूरे विश्व का आध्यात्मिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से नेतृत्व कर सके। ऐसा भारत हमको बनाना है। आज उन 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत को, उनकी कुर्बानियों को, उनके आत्म बलिदान को प्रणाम करते हुए, और हजारों हजारों, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों वर्षों से जिन अपने पुरखों ने अपने तप से, अपने श्रद्धा से, शौर्य और पराक्रम से इस राष्ट्र का निर्माण किया। भद्रम इच्छन्त शाह सर्वविदा तपो दीक्षाम उपनिषेद अग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम तदस्मै देवा उपसमनमन्तु। ये जो राष्ट्र की कल्पना, और देखो आज हमारी आंखों के सामने सब कुछ है, इसलिए वो कैसी चीजें खड़ी होती हैं उसके बारे में शायद हम नहीं सोच सकते। लेकिन वैयक्तिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन की पूरी कल्पना और उसकी पूरी व्यवस्था, यह कोई छोटी बात नहीं होती है। व्यक्ति से लेकर के राष्ट्र और विश्व की कल्पना और उसको आकार देना, यह काम अपने पुरखों ने किया। आज पूरी दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके मूल में अपने पुरखों का तप है, अपने पूर्वजों की पुण्याई को साथ में लेकर के। विवेकवान मस्तिष्क, पुरुषार्थी हमारी भुजाएं, प्रेम, कृतज्ञता से, करुणा से भरा हुआ हमारा हृदय, जिसमें हम समग्रता के साथ जीवन के पथ पर, वेद के पथ पर, सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर, आत्म कल्याण और लोक कल्याण के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आज क्योंकि आचार्य कुलम से शुरुआत होकर के और पतंजलि आयुर्वेद तक दिन भर ये गणतंत्र दिवस पर समारोह रखे गए हैं, और उसकी शुरुआत यहाँ के बहुत ही तेजस्वी बच्चों ने की है। और उसमें हमने संस्कृत से लेकर के हमारा जो त्रिभाषा का सिद्धांत था कि अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, उसके साथ साथ अपनी मूल भाषा संस्कृत, और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी सहित तमाम वैश्विक भाषाओं के बोध के साथ एक ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण हो जिनमें दिव्यता हो, और दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व जब राष्ट्र और विश्व को मिलेगा, तब ये वेदों का उद्घोष, इंद्रम वर्धन्तो अप्तः कण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो आरावणः, ये संकल्प पूरा होगा। मैं
जो प्रभात में बात कह रहा था ध्यान के वक्त, उसको दोहराता हुआ अपनी बात को विराम दूंगा। मैंने कहा था आज मोदी जी को दुनिया में सबसे ताकतवर शख्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े राष्ट्र का जो आज ज्ञान शक्ति से, सैन्य शक्ति से, अर्थ शक्ति से पूरी दुनिया में शिखर पर माना जाता है। ओबामा का एक व्यक्ति का महत्व नहीं है, क्योंकि वो उस देश को रिप्रेजेंट करता है जिस देश के लोगों ने बहुत पुरुषार्थ करके 500 वर्षों में उसको इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन वो व्यक्ति कहां से आया? उस व्यक्ति के मां बाप इतने निर्धन थे कि अपने बच्चे की पालना ठीक से नहीं कर सकते थे। आज ओबामा जो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है, उसके माता पिता के पास उसे पढ़ाने के लिए, अच्छा भोजन खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। उसके माता पिता माइग्रेट करके, अर्थात अपना वतन छोड़ करके, अफ्रीका छोड़ करके अमेरिका गए इस उम्मीद में कि हमारी किस्मत जाग जाएगी, हमें भी जीने का कुछ आधार मिल जाएगा। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाने वाला उसका व्यक्ति जो शिखर पर है, वो भी अभावों और संघर्षों में वंचितों के बीच पैदा हुआ। और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, उसका भी आज भारत को रिप्रेजेंट करने वाला प्रधानमंत्री, वो भी एक अत्यंत गरीब परिवार में, जहां पिता चाय बेचा करता था, नरेंद्र मोदी कप धोया करता था, और वहां से उसकी जीवन की यात्रा शुरू की। दोनों ही वंचितों के बीच में, अभावों और संघर्षों, अंधेरों के बीच में पैदा हुए। और हमने जब ओबामा जी यहां पर आए, तब भी हमने एक अपने संदेश में कहा था, अपने ट्विटर पर और फेसबुक पर, कि दुनिया के दो ताकतवर मुल्कों के दो ऐसे व्यक्ति मिल रहे हैं जो अभावों और संघर्षों के बीच में, वंचितों के बीच में पैदा हुए हैं। आज भी 700 करोड़ से ज्यादा की इस दुनिया के आधे से ज्यादा लोग वंचित हैं, शोषित हैं, वो इनजस्टिस में जी रहे हैं, उनको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस नहीं मिला है। ये दो व्यक्ति यदि आज एक होकर के और ऐसे वंचित लोगों के अधिकारों को उनको दिला सके, तो मुझे लगता है ये इस धरती के लिए सबसे बड़ा वरदान है। अब अपने बारे में एक बात, जो सामर्थ्य ओबामा में है, जो सामर्थ्य नरेंद्र मोदी जी में है, उससे ज्यादा सामर्थ्य आप लोगों में है। क्योंकि दोनों को ही वो अवसर नहीं मिले जो अवसर आप लोगों को मिल रहे हैं। इसलिए मैं तो आपको ओबामा जी और मोदी जी से भी बड़ा देखना चाहता हूं, क्योंकि उनसे ज्यादा सुंदर वातावरण आपको मिला है, इतना ऊंचा परिवेश मिला है। आप छलांग लगाएंगे तो ओबामा और मोदी जी से भी ऊंचाई पर जाएंगे। इतने बड़े हौसले के साथ, ऐसे शौर्य और पराक्रम के साथ, अदम्य साहस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपका भी यश स्काई इज द लिमिट, आसमान से भी बड़ा होगा। अरे एक लोग की बात क्या, हम तो वेद का उद्घोष उसको अपने जीवन में जीते हैं। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहिता, अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुमृतम आसन अर्क स्थिधात रजसो इमान अजस्रो घर्मो हविरस्म नाम। मैं एक नहीं, दो नहीं, मैं 3 लोकों पर विजय पाने वाला हूं और अपने पराक्रम से एक नया इतिहास गढ़ने वाला हूं। ऐसे संकल्प के साथ आप जिए। आपको पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोल भारत माता की वंदे वंदे, सत्य सनातन वैदिक धर्म की